اور جب انہوں نے لفظ اللہ کی صدا بلند کی تو وہ لوگ جن کا ہمارے نیشنلٹی سے تعلق نہیں تھا، جن کا اس مذہب سے بھی تعلق نہیں تھا، وہ بھی ان کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرتے تھے. اور میں نے اس شخصیت میں یہ چیز دیکھی، پاکستان سے باہر انہیں سننے کا موقع ملا مجھے، اور جب وہ اللہ پڑھ رہے تھے تو واقعی میں نے دیکھا کہ سارے کا سارا مجمع ساتھ پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور مجھے لگتا ہے سب چیزیں جو ہے نا وہ سب کے حصے میں آتی نہیں ہیں. جیسے سورہ رحمان سے جب آغاز ہوا تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے. اور آج یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پھیپھڑے جو ہیں یہ کتنے قیمتی ہیں. وینٹیلیٹر کے پیسے دینے پہ یہ پتہ لگتا ہے کہ رب تو اس کے بھی کبھی پیسے وصول نہیں کرتا یا کہتا. اور وہ اٹیلین رو پڑا اس بات پہ کہ 58 برس مجھے ہو گئے، اس خالق نے اس کا کوئی بل مجھے نہیں دیا. سو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. جس شخصیت کا ذکر کیا وسیم نے، بڑے خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جن میں ان کے اکابرین، ان کے بڑے اور ان کے اسلاف کی جھلک نظر آئے. جب آپ ان کو دیکھیں تو وہ کسی اور کی یاد دلائیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ فتح علی مبارک علی اور نصرت فتح علی خان اور مجاہد مبارک علی خان، اور فتح علی خان اور مبارک علی جب پڑھتے تھے سما میں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے اور لوگ ان کو سنتے تھے. پھر نصرت فتح علی خان اور مجاہد مبارک علی خان، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو وہ جن کے حصے میں یہ ذمہ داری آئی انہوں نے بخوبی نبھائی. بے شک. اور شکر الحمدللہ کہ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں ان کے فن کا اعتراف کیا جاتا ہے. ایسے روشن پیشانی اور چہرے کے مالک ہیں. اور بڑی بات یہ ہے، ابھی جب مولانا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو وہ شاید یہ ہے کہ سچا ہو سر، کیونکہ سچا سر اس کا پتہ دیتا ہے. اور وسیم یہ دیکھیے کہ مجھے کسی ایک بچی نے ایک بار کہا کہ آپ نے سوچا ہے کہ کئی لوگ بہت گھنٹے بات کرتے ہیں، ان کی بات دل پہ اثر نہیں کرتی، اور کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو وہ رب سے ملا دیتا ہے. سو ایسے ہی فنکار ہیں. اور حمد باری تعالیٰ اور کلام جناب مظفر وارثی صاحب کا میں بڑی محبت میں اور بڑے احترام اور فخر سے دعوت دیتا ہوں استاد راحت فتح علی خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. جناب. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں
जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे, किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे। जो सबके माथे पे मोहर कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम
में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। क्या कहना है खान साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना तारक जमील साहब, हम आपके बयानों को इतना घर में सुनते हैं, आज पहली बार लाइवली आपके साथ मुलाकात का अल्लाह ताला ने शरफ बख्शा है, तो बहुत बासआदत बात है हमारे लिए कि आपको इस तरह से देख रहे हैं। और आपका जो आपने अंदर ग्रीन रूम में एक बयान आपने हमें सुनाया, उससे तो बहुत ही जो है वो हम जैसे लोगों का हौसला बुलंद हुआ। हाँ साहब, आपको पता है कि आप में और मौलाना साहब में एक कदर मुश्तरक है, और वो है सच। सर आपके यहाँ से भी सच आता है और पैगाम उनके यहाँ से भी सच का आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि आपके इस जो काम है इसका हम हिस्सा हैं, तो ये हमारे लिए बख्शिश का वसीला हो सकता है। क्या कहना है? आमीन। वाह, अल्लाह और रंग लगाए खान साहब। क्या बात। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। बहुत मोहब्बत। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, लेजेंड ऑफ पाकिस्तान राहत फ़तेह अली खान, वाह क्या कहने हैं। और क्या रूह खुश हो गई गुफ्तगू सुनकर भी, और जिस अंदाज से जो कलाम पेश किया, ज़ाहिर है कलाम की इतनी तासीर है, कलाम ही इतना पुरअसर है मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का ही, और फिर राहत भाई ने जिस तरह इसको पढ़ा है, तो क्या कहने जो हैं। सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है, वाह। वही खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान सो आज की इस बज़्म, जिस तरह नूर भाई ने कहा, कई एतबार से बहुत ही मुनफरिद, और कहते हैं ना, मतलब आई वुड से इट इज़ अनदर फर्स्ट बाय मौलाना तारिक जमील साहब। जमील साहब के पास ये खासा है कि ज़ाहिर है ये एक इट्स एन ओपन सीक्रेट कि बहुत सारे लोग जो कि आम तौर पर इस गुफ्तगू से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते, वो मौलाना साहब जब बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ रिलेट नहीं कर पाते, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा कुछ होता है। तो आज की ये बज़्म इस हवाले से ये मुनफरिद है कि एक, जिस तरह मैंने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक बामकसद तिजारत का आगाज़ है, और क्या ही अच्छा हो अगर इस हवाले से भी इस चीज़ की भी तकलीद हो मौलाना साहब की, तो बहुत अच्छा रुझान है। देखिए, अभी मैं वो जो सच की बात कर रहा था, मतलब इससे बड़ी क्या खुशबख्ती हो सकती है कि जब वो एक स्टैंप हम अभी कह रहे थे, सो अगर पाकिस्तान का जहाँ नाम आए, किसी ब्रांड का नाम आए, तो आप कहें इसका मतलब है क्वालिटी, इसका मतलब है सच, इसका मतलब है नंबर 1। तो फिर ये बात है। और मैं कल भी आपसे कह रहा था कि मेरे अब्बा अल्लाह बख्शे वो कहते थे कि नंबर 2 का एक फायदा है। मैंने कहा जी वो क्या? कहने लगे इसका मतलब है कि कोई नंबर 1 है जिसकी कॉपी निकलती है। सो मेरा ख्याल है कि उसकी जुस्तजू रहनी चाहिए, और वो जिंदगी में रहती है हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, एक एक लुकमे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रहे, तो वो भी इबादत हो जाती है। वो खाना भी, उठना बैठना नशिस्त सब उसी का हिस्सा बन जाती है। और इस एतबार से इन मानों में ज़ाहिर है अभी भी हम सब एक तकरीब में भी हैं, लेकिन इबादत हो रही है। ये हलाल रिस्क, ज़ाहिर है हमने उलमाए कराम से जो सुना, एक इबादत है, और फिर एक बामकसद तिजारत, तो ज़ाहिर बात है। तो जनाब, इसी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जनाब राहत फ़तेह अली खान साहब से आपने हमद बारी ताला सुनी, और अल्लाह ताला के नाम जो कि हमने मौलाना साहब से ही सुना, उलमाए कराम से सीखा कि क्या मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ अंदाज है। अल्लाह के एक नाम की एक सिफत आप सुनते चले जाएं और उसमें मबूद होते चले जाएं, लुत्फ लेते चले जाएं, तो आगे इरादा यही है कि अब इस हमदे बारी ताला के बाद पाकिस्तान के एक ऐसे नाम को बुलाया जाए जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज हरगिज़ भी नहीं है, और उनसे अस्माउल हुस्ना सुने जाएं, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम सुने जाएं, ताकि बज़्म की बरकत में भी मजीद इजाफा हो। लेकिन वसीम, एक आप ये देखिए कि कैसी ये भी उन खुश नसीबों में से है, वो जो लेगेसी को कैरी करने वाली बात है। मतलब पटियाला घराना, और आप जिक्र करें उस्ताद अमानत अली खान साहब का, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब का, और फिर हामिद अली खान साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे, और वो सारा सिलसिला। और फिर कौन है, मैं ये कहूँगा कि जब कभी ये कहा जाए कि इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या, तो मैंने बड़े बुजुर्गों को देखा कि वो इस दुनिया की बेसबाती को समझते हुए जब उसको सुनते हैं तो वो एक और कैफियत में होते हैं। और ये मकबूलियत की सनद हर एक के हिस्से में नहीं आती। बाअदब बामुराद, जिनको आप अभी दावत देने वाले हैं, आप कभी गौर कीजिएगा, जब कभी जिक्र आता है इनसे बात करने में, या कभी ये कोई कलाम पेश कर रहे होते हैं, तो जहां जरा अपनी तौसीफ आए तो कान को हाथ लगाते हैं, तौबा के
زمرے میں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. تو جناب جناب آپ لوگوں کی بھرپور دعاؤں میں اور تالیوں میں میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان کا مشہور و معروف نام جناب شفقت امانت علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اسماء الحسنہ ہم تک پیش کریں. جناب شفقت امانت علی صاحب آئیے گا. جناب السلام علیکم. اوکے کیسے مزاج ہے صاحب؟ اب اس میں اچھا، بلکہ ہم یوں کرتے ہیں کہ پھر پہلے ہم آپ سے اسماء الحسنہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. جی ٹھیک، تو آئیے بسم اللہ آئیے. المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيث الشهيد. الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور.
کہہ رہے Hats ہیں, off, sir. واہ माशाल्लाह वाह. माशाल्लाह मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था शफकत भाई, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये पहली बार है कि आपने अस्माए रब्बी को पढ़ा इस तरह, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मतलब बाकायदा रिकॉर्ड जो कराएगा? मेरा ख्याल है मैं पहली दफ़ा कहूँगा कि मुझे पहली दफ़ा ये सआदत नसीब हुई है, वाह वाह. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं ऐसी कोई चीज़ कलाम पढ़ रहा हूँ स्टेज पे, और और ये अपनी नौयत की भी एक मुनफरिद और पहली तकरीब है, जिसके इस मुतालिक क्या कहिएगा? बिल्कुल पहली दफ़ा. मौलाना साहब को पता है, हमें जब हम स्टेज पे आते हैं तो हमें कुछ दूसरा माहौल देखने को मिलता है, लेकिन आज ये सआदत नसीब हुई, बहुत शुक्रिया इसके लिए. तो वो जो जब अभी हम सुन रहे थे, वो जो पंजाबी में कहते हैं कि लू कंडे खलोजा देने, तो वो जब आप अदा कर रहे थे और सिफाती नाम जब आपको पता लग रहा है खूबियां, तो क्या कैफियत रहती? सर मेरी कैफियत बिल्कुल आप जैसी ही है. इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये नाम इतने अल्लाह अकबर, इतने बड़े हैं कि ये मेरी जगह पे कोई बच्चा भी खड़ा होकर पढ़ रहा होता तो शायद आपका यही हालत होती. शफकत भाई अल्लाह और रंग लगाया आपको सर जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर. थैंक यू सर. बहुत मोहब्बत. जज़ाकल्लाह. ख़वातीन हज़रात, शफ़क़त अमानत अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त भाई, जज़ाकल्लाह. क्या कहने हैं, वाह. मतलब आज की इस तकरीब में हर चीज ही अपने तर्ज में निराली है और एक फर्स्ट है. और हर हमने चीज़ हमने में. तो वो भी सुना कि अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो. जनाब, तो अल्लाह ताला का बाबरकत नाम की तकरार हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह. और आगे भी इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा. लेकिन अब वो मरहला है कि हम ये चाहते हैं कि आज हम जिस मकसद से यहाँ पर जमा हुए हैं, और जो मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसी तकरार करना चाहूंगा कि बामकसद तिजारत. जनाब. हमने उलमा कराम से ये सुना कि एक मुबाह काम में भी, एक आम काम में भी अगर आप मकसदियत शामिल कर लें तो फिर वो इबादत का दर्जा पा लेती है. और मौलाना साहब ने तिजारत में ये काम किया है, तो क्या ही और वो जो कहना है. सर्कुलेशन की एक बात आई कि जब पानी कहीं खड़ा और जौहर बन जाता है, तो वही सूरत माल की भी है. वो सर्कुलेशन में रहे, वो सब तक पहुंचे और वो एक इकोनॉमी का बेहतरीन जरिया बने. और